Namaskar. We are running into the last week of free credit course on an introduction to Indian feminism being run in collaboration by Bharatiya Stri Shakti, Baba Sahib Ambedkar University of Social Sciences, Mau, MP, and Heritage Society, Patna. In this 45-hour long course, which we started on 28th of January 2022, we are now into the very last leg of this course, and this very aspect which we are going to deal in the present week and in the following week concentrates mostly on our present day women issues. And to deal and to discuss on these very peculiar issues, we are blessed as usual to have on our platform with us Honorable Advocate Jyotika Kalraji as a first resource person, and in the second, from 6 to 7, we'll be honored with the benign presence of Madam Sangeeta Godboleji. In the first session, which will be taken up by Honorable Advocate Jyotika Kalraji on the theme Women and Law, Evolution of Gender Just Laws in India. I think this is the most relevant aspect because without this legal aspect or an expertise in law, one cannot actually think of the real time issues of social activism in India today. And we have the best legal luminary amongst us. With Jyotika Kalra Madam, we can actually have this blessing of the presence of such a distinguished, eminent lawyer who had been for full 3 years member on the National Human Rights Commission from April 5th, 2017 to April 4, 2022. So till very recently, she was at the helm of the affairs of the legal aspects of India, and she knows the ins and outs, the merits and demerits which Indian women are facing in the legal area. Madam Jyotika Kalraji was an advocate on record with the Supreme Court of India, and she has to her credit an experience of nearly 3 decades. Having filed many public interest litigations and author of 3 important books, respected advocate Kalra Madam has been honored with the award of an outstanding woman in 2014 by the National Commission for Women. Having worked as an independent director of Power Grid Corporation India Limited, Advocate Jyotika Kalraji has attended many national, international conferences and also has to her credit innumerable important, relevant publications, articles in the various books, journals, and newspapers. Madam was speaker at the 79th session of CEDA, which is Convention for Elimination of Discrimination Against Women, in June 2021. She has also been teaching as the Faculty of Law, University of Jammu. But besides all these great achievements and accomplishments to her credit, we are very proud to convey to all our participants that she was also, rather, she is associated with Bharatiya Stri Shakti in a very, very passionate manner, and she has been the president of Bharatiya Stri Shakti's affiliated wing of Stri Chetna, which is also known as Conscience for Women, and she was there with us at the Nagpur Adhiveshan. Madam, we welcome you. आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत, आपका वंदन, और आज इस कार्यक्रम में आप हमारे बीच हैं, ये हमारा सौभाग्य है. Welcome, madam, once again, and now we request you
to kindly deliver your lecture, and everybody is eager to listen to you on the theme Women and Law, Evolution of Gender Just Laws in India. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you, Sindhu, and thank you, Jyoti, and thank you all the participants being here and being listening to this dialogue. You know, law had always been an instrument in realization of the rights, and women rights realization has also come through this mode of law. And when we talk about gender justice or gender just laws or gender just atmosphere, the situation which we perceive or we talk about is the situation where men and women are equal. Gender, as we all know, is not a biological word. Gender is a socially and culturally and from the society derived notion, because of which, the society, families, and the culture determines as to what role is to be played by a man and what role is to be played by a woman. That's the ज्योतिका reason जी, for this. एक मिनट आपको डिस्टर्ब करती हूँ. हमारे पार्टिसिपेंट्स दोनों अगर आप मिक्स करेंगे इंग्लिश और हिंदी, सो दे आर मोर कंफर्टेबल इफ यू स्पीक. Can I only stick to Hindi? नहीं, हमारे कुछ केरल के भी हो सकते हैं, बट यू कैन स्टार्ट इन हिंदी. इफ एनी रिक्वेस्ट इज देयर, वी विल लेट यू नो. You will please ask if I can speak in Hindi. All of you, please raise your hand. Those who are not comfortable for Hindi. मुझे लगता है हिंदी में शुरू कर सकते हैं. चलिए, तो जेंडर की जब हम बात कर रहे थे, तो जेंडर एक अंग्रेजी का शब्द है और वो हम मानते हैं कि समाज, परिवार और व्यवस्थाएं ये डिटरमिन करती हैं, ये सुनियोजित करती हैं कि पुरुष को क्या करना है और महिला को क्या करना है. और ये चलते उन्होंने कामों की जो सीमा भी बांध दी कि पुरुष घर के बाहर काम करेगा, महिला घर के अंदर काम करेगी. पर इसके चलते चलते जो समाज है, जैसे शब्द हमारा टॉपिक ही है एवोल्यूशन. समाज है, विचार बदलते हैं, हमारी काम करने की शैली बदलती है, हम सोचने का तरीके बदलते हैं. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम विश्व में जो आसपास घटित हो रहा है उससे भी प्रभावित होते हैं. तो ऐसा हुआ कि जेंडर की डेफिनेशन समझते समझते, जेंडर ये बहुत ही रिसेंट, मैं अपने जीवन में देखूं तो ये कोई 20-25 साल पुराना ही कॉन्सेप्ट है. जब हमने जेंडर की अपने अपने इस परिवेश में, मतलब भारतीय परिवेश में हमने जेंडर की बात करनी शुरू करी. तो अल्टीमेटली जेंडर को हम अंडरस्टैंड करते हैं, पर जेंडर जस्टिस को जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो व्यवस्था जहां पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बराबर अवसर प्राप्त हो, दोनों अपनी क्षमताओं के दम पर, अपने योग्यता के दम पर कार्य कर सके, दोनों को किसी भी प्रकार से ये डिसएडवांटेज ना हो कि वो महिला है, या किसी को ये डिसएडवांटेज ना हो कि वो पुरुष है. और जनरली ये महिला को लेकर बात कही जाती है, क्योंकि जहां जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की बात होती है, जेंडर जस्टिस की बात होती है, तो एक नोशन है, और वो नोशन भी हमारी व्यवस्था से आता है, जो ये कहता है कि पुरुष महिलाओं से सुपीरियर है. इसके चलते महिलाओं को समाज में कम अधिकार मिलते हैं. तो जब हम जेंडर जस्टिस की बात करते हैं तो प्राइमरीली हम ये बात करते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर समाज में अधिकार, महिलाओं को पुरुषों के बराबर समाज में कार्य करने के अवसर, महिलाओं को पुरुषों के बराबर समाज में अपनी क्षमताओं को अभिव्यक्त करने के अवसर मिलने चाहिए. अगर हम बात करें कि एवोल्यूशन ऑफ जेंडर जस्ट लॉ, तो सबसे पहले जो कानून बनता है भारत में महिलाओं की इस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, मतलब महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव होता था, उसके लिए जो पहला कानून आता है तो 1829 1829 में सती को एबॉलिश किया जाता है. मतलब जो सती जो व्यवस्था सब जानते हैं कि जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी उस चिता पर जलकर अपने आप को स्वाह कर देती थी, तो सती को ग्लोरीफाई किया जाता था. परंतु 1829 में कानून बनता है और ये कहा जाता है कि जो सती है ये एक अपराध है, ये सती का कस्टम एक अपराध है. और एक बहुत प्रसन्नता की बात है कि ये जो जब समाज में कुरीति थी, तो समाज सुधारकों ने ही इस कानून को लाने में अग्रणी रोल प्ले किया. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनके चलते हम इस प्रकार के कानून ला पाए. और उसी समय में लगभग 30 साल के बाद
विडो रीमैरिज एक्ट आता है 1856 में, जब ये व्यवस्था होती है कि पहले, क्योंकि अगर हम देखें तो सती एबोलिशन एक्ट भी विडो रीमैरिज एक्ट के साथ एक कनेक्शन है, एक जोड़ है, क्योंकि विधवा को अपने पति की चिता पे जल जाना है, तो फिर इसलिए बात खत्म हो जाती है। पर अगर विधवा को पति की चिता पे नहीं जलना, तो वो लड़की एक जवान 15 साल की, 18 साल की, या किसी भी आयु की लड़की हो सकती है, तो उसके लिए अगर उसको जीवन में स्थिर होना है, सेटल होना है, तो ये व्यवस्था होगी कि उसकी दोबारा शादी कर दी जाए। परंतु हमारे समाज में उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो इसलिए कानून बनाकर ये लाना पड़ा 1856 में कि एक विधवा कानूनी रूप से विवाह कर सकती है। उससे पहले विधवा दूसरा विवाह नहीं कर पाती थी। और इसी प्रकार इसी इसी उसमें अगर हम देखें तो 1829 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट आता है। वो भी एक ऐसा कानून है जो कि सभी, और देखिए सती एबोलिशन एक्ट और विडो रीमैरिज एक्ट या फिर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, ये किसी पर्टिकुलर धर्म को लेके कानून नहीं बनते, ये सभी धर्मों के लिए, मतलब सेकुलर लेजिस्लेशन से, जो कि सभी धर्मों पे बराबर से लागू होते हैं, कि एक बच्चे का विवाह नहीं हो सकता। आज वो आयु 18 वर्ष और 21 वर्ष है, 18 वर्ष लड़कियों के लिए और 21 वर्ष लड़कों के लिए, पर इससे पहले वो आयु कम थी और समय समय पर वो आयु को बढ़ाया गया, ताकि बच्चों की जो उम्र है वो उसमें पढ़े लिखे, उसमें वो खेले कूदे, शादी के बंधन में ना बंधे, या फिर बच्चों को पैदा करना और माता पिता की जिम्मेवारी के उसमें ना पड़े। और ऐसे ही चलते जो जो ये तो वो कानून थे जो जो पूरी तरह से अपराध की श्रेणी में आते हैं, मतलब कि एबोलिशन ऑफ सती एक्ट कह लें या चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट कह लें। उसके साथ साथ जैसे विधवाओं को दूसरी शादी करने का अवसर मिला, तो महिला को, हिंदू महिला को 1937 में, 1937 में राइट टू प्रॉपर्टी मिला। मतलब कोई लिमिटेड राइट था, परंतु इससे पहले तक महिला को संपत्ति का कोई अधिकार ही नहीं था। 1937 में पहली बार एक लिमिटेड राइट मिलता है महिला को, जो कि उसकी अपनी मेंटेनेंस वगैरह के लिए वो संपत्ति का इस्तेमाल कर सकती है। और 1946 में पहली बार एक ऐसा कानून आता है जिसमें कि महिला, मैरिड महिला ये अधिकार पाती है कि अगर परिस्थितियां ऐसी हैं तो वो अपने पति को छोड़कर, मतलब बिना तलाक लिए भी अपने पति से अलग घर में रह सकती है। ऐसा 1946 में कानून आता है। और फिर हम आगे चलते हैं, तो हमारा जब देश आजाद होता है, हम 1951 में अपने संविधान को एक्सेप्ट करते हैं, अपने देश को अपने संविधान की तरह के अनुसार चलाने की हम प्रॉमिस करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम स्वयं ही अपने आप को एक ऐसा संविधान देते हैं जिसमें कि जो प्रियम्बल है वही शुरुआत इक्वालिटी से करता है। और इक्वालिटी की शुरुआत करने के साथ यही होता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव धर्म या जेंडर या सेक्स के आधार पर नहीं होगा। महिला पुरुष है या किस धर्म से बिलोंग करता है, सभी बराबरी से, सभी को बराबरी से जीने का अधिकार है। उसके चलते आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन में आता है जो कि सबको गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी धर्म, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या रेस और कास्ट के आधार पर। और आर्टिकल 15(3) सरकार को ये सशक्त करता है कि अगर सरकार चाहे तो महिलाओं के पक्ष में विशेष, महिला और बच्चों के पक्ष में विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। और आर्टिकल 16 बराबर की अवसर देता है महिलाओं को पब्लिक सेक्टर में काम करने के लिए, महिलाओं को बराबर के अवसर देता है। इसी प्रकार आर्टिकल 21 जो है, वो जिसको हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, वो भी आर्टिकल बहुत इवॉल्व होता है। और फाइनली जब वो एवोल्यूशन की स्टेज पे आता है, मैं आगे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की बात करूंगी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है कि राइट टू लिव, जो आर्टिकल 21 है, दैट इंक्लूड्स इन इटसेल्फ, मतलब उसमें राइट टू लिव विद डिग्निटी भी शामिल है। जब हम जीवन जीने के अधिकार की बात करते हैं, तो हम ये भी कहते हैं कि मुझे अपने जीवन को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, मतलब अपनी इज्जत के साथ मैं अपना जीवन जीऊं। और इसी प्रकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, जिसमें कि ये जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर कि सभी नागरिकों को जहां तक हो सके एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब वो अच्छे से कमा सके, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर डाली गई आर्टिकल 39A में। और 15AE जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज का
आर्टिकल है, उसमें ये कहा गया कि हम सभी नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि हम वो सभी प्रैक्टिसेस जो कि डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन है, मतलब महिला की इज्जत के साथ जो अन्याय करती हैं, जो महिला की इज्जत के साथ खेलती हैं, उस प्रकार की किसी भी व्यवस्था को हम रिनाउंस करेंगे। हम सभी वो प्रैक्टिसेस को छोड़ देंगे जिसमें महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है। और ऐसे ही चले तो कुछ महिला से जो जुड़े कानून 1860 में हमारा पीनल कोड आया था, और 1860 में ही इस पीनल कोड में व्यवस्था थी जिसको हम कहते हैं सेक्शन 354, मतलब आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ विमेन पे जाता है, कि जिसमें महिला के साथ छेड़छाड़ करना अपराध के क्षेत्र में आया। आर्टिकल सेक्शन 509 आया कि जिसमें शब्दों के द्वारा या आप हाव भाव के द्वारा महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, या उसी के साथ जिसको हम बहुत ज्यादा सब लोग उस कानून को जानते हैं, वो है बलात्कार का कानून। तो सेक्शन 376 बलात्कार की को परिभाषित करता है, और बलात्कार की परिभाषा में ये जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है, केवल एक महिला ही बलात्कार की विक्टिम हो सकती है और बलात्कार का अपराधी एक पुरुष हो सकता है। तो इस तरह से बलात्कार की डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी कि मतलब अपराध पुरुष करेगा अगर वो महिला के साथ बलात्कार करता है तो। और आगे चले तो उसी समय में बाइगेमी को भी अपराध बनाया गया कि मतलब आप एक शादी के होते दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे तो वो अपराध है, और अपराध की श्रेणी के हाथ चलते उसमें सजा का प्रावधान दिया गया। इसी तरह 397 जो था एडल्ट्री को जो डील करता है, उसमें ये कानून था कि अगर एक विवाहिता महिला मतलब मैरिड वुमेन अगर किसी पुरुष के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है अपने पति के अलावा, तो वो जो पुरुष है, वो जो बाहर का पुरुष है, वो एडल्ट्री का दोषी पाया जाएगा। परंतु अभी एक 2017 की जो जजमेंट थी जो कि जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 397 को मतलब एडल्ट्री के अपराध को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। और ये मैंने जब आपको सामने पीनल कानून बताए, मुझे लगता है कि क्लास काफी क्या मोनोटोनस हो रही है। जी ज्योति। नहीं मैम, वी आर लिसनिंग। अगर आप कहें तो हम No, I just want to say, like I'm telling a law one after the other. Is it okay? Because the topic is yes, such, ma'am. because we need, नहीं we need to have मैम, the आप journey. एक्सपर्ट है इस फील्ड के, हम इसी को सुनना चाहते हैं। ये मैसेज भी है, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन गोइंग ऑन। नहीं, we are listening definitely, and if you wish you can take break and take the questions, up to you. Yeah, No, end of the session. That's what I was asking. That I was asking. I mean, I can take a break. I mean, it's a long queue. All the laws are readily. I'm very much hands-on with all those laws. So coming next to the category of legislations, which are gender just legislation, which came. So 1976 was the time when we had Equal Remuneration Act. Prior to that, even now, this issue is there that women are not paid equally with that of men. And that I have seen very much prevalent in, this construction industry where women is, and the category also, men, their husband get more than the wives. They work in couples as a couple. Husbands get more than the wives. So this Equal Remuneration Act 76, when it was introduced, it was specifically focusing upon the equal remuneration to women. Women should not be deprived of the remuneration as that of a man just because they are women. Especially, and then 1948, the Factories Act had come, and then this Factories Act in 1948 talked about Industrial Disputes Act also in 1947. Both these acts mentioned about the working condition of women in the factories. We are not talking about the working condition of the women in the offices, but these Industrial Disputes Act and Factories Act refers to the women working in the industry, in the manufacturing sector. So these both these legislations, at that point of time had made a provision for the lactating mothers. I mean, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं माएं,
तो काम करते समय महिलाओं को, माओ को वो बच्चे को दूध पिलाने का इंटरवल मिलना चाहिए। इसी कानून में क्रश की व्यवस्था उस समय भी करी गई कि जब महिलाएं काम करती हैं, उनके बच्चे साथ होंगे, जैसे मैंने बताया कि परिवार एक जोड़ा काम करता है, तो बच्चों के लिए क्रश की व्यवस्था काम के स्थान पर की जाए उनके लिए। और एक कहने को छोटी लगती है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करती है, जब आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए सेपरेट टॉयलेट, मतलब महिलाओं को पुरुषों से अलग एक शौचालय की व्यवस्था की जाए। तो ये सभी इन कानूनों में ये सब प्रावधान आते हैं, ये सुरक्षाएं या इस प्रकार की सुविधाएं महिलाओं के लिए देने की बात आती है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो लेजिस्लेचर आता है वो 1961 में मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट। तो मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट में मतलब पेड लीव फॉर योर मैटरनिटी, आई मीन व्हेन यू आर, आप जब प्रेग्नेंट हैं, जब आप पेट से हैं और उसके बाद आप बच्चे को जन्म देते हैं, तो आपके एम्प्लॉयर का, अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो उसको ये उसके ऊपर जिम्मेदारी है, सरकारी जो मैं जो काम करता हूँ उनके ऊपर भी, कि महिला को पेड मैटरनिटी लीव दी जाए। और आज की तारीख में ये पेड मैटरनिटी लीव 6 महीने के लगभग है, आई थिंक 24 हफ्ता या समथिंग लाइक दैट। सो अभी रिसेंटली इस मैटरनिटी लीव को बढ़ाया गया है। और ये भी इसके साथ साथ, क्योंकि हम एवोल्यूशन की बात करें तो हम थोड़े थोड़े चैलेंजेस को भी पकड़ते हैं। एक एक ऐसी भी धारणा रहती है कि जो एम्प्लॉयर है, जो मैनेजमेंट है, वो थोड़ा यंग लड़कियों को या न्यूली मैरिड लड़कियों को नौकरियां देने में हिचकिचाता है, थोड़ा रिलक्टेंट होता है। उनको लगता है कि आज हम इसको, लड़की को नौकरी देंगे तो फिर इसके थोड़ी देर बाद हमको 6 महीने की इसको पेड लीव देनी पड़ेगी, मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ेगा। और ना केवल एम्प्लॉयर की बात करूं तो मैं जो ये जितने भी आर्मी के केसेस, 2 केसेस तो मैंने खुद किए जिसमें कि महिलाओं को रिक्रूट नहीं किया जाता था और परमानेंट कमीशन में भी वो रहा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हमेशा एक ऐसा डिफेंस रहा कि हम महिलाओं को अगर रिक्रूट करेंगे तो हमारे ऊपर, मिनिस्ट्री के ऊपर एक अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन बनेगा, जिसके चलते हमें प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो न्यू मदर्स हैं उनको हमें पेड लीव देनी पड़ेगी। तो ये मतलब ये भी एक जो ना एक टसल चलती है, प्रावधान कर दिया, पर समाज अभी जो लोग हैं उनको लगता है कि एक माँ को पेड लीव देना जिस समय वो अपने बच्चे की देखभाल कर रही है, तो शायद उसको तो फायदा हो रहा है पर एम्प्लॉयर को या जो मैनेजमेंट है वो उसको नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार की चर्चाएं जैसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, हम जेंडर की बात करते हैं, इस प्रकार की चर्चाएं शायद ये बातों को जस्टिफाई करती हैं कि वो जो माँ है जो बच्चा पैदा कर रही है, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बच्चा पैदा नहीं कर रही है, वो बच्चा समाज के लिए, वो बच्चा इस देश के लिए है। तो वो अगर अगर समाज खुले हाथ से उसको स्वीकार नहीं करेगा, उस बच्चे की जन्म में, उस बच्चे के लालन पोषण में अपना योगदान नहीं देगा, तो फिर आप महिला को दोष ना दें कि कल को महिलाएं, अगर आज जवान लड़कियां जब ऐसा सोचें कि हम बच्चा नहीं पैदा करेंगे, तो ये समाज और ये मैनेजमेंट और ये हम सबके ऊपर जिम्मेदारी है कि हम इस मैटरनिटी लीव को इंश्योर करें कि जो भी लड़कियां, यंग गर्ल्स जो काम कर रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, उनका हम सहयोग दें, उनके बराबर खड़े हों और इंश्योर करें कि उनको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। इसी प्रकार जो अगर एक मेंटेनेंस का लॉ का एक कंपोनेंट है, जो कि एक जो हम गुजारा भत्ता कहते हैं, तो गुजारा भत्ता जो शुरू में आया था 1973 में 125 सीआरपीसी एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें कि महिलाओं की पत्नी के लिए, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए मेंटेनेंस का प्रावधान दिया गया। और ये भी जो लॉ है, ऑल्दो ये परिवार का लॉ है, पत्नी को लेके, बच्चों को लेके या पेरेंट्स को लेके, और गुजारा भत्ते का लॉ है, तो ये सेकुलर लॉ है, इसलिए ये सभी पे, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या सिख, सभी पे ये लागू होता है, सभी इसके दायरे में आते हैं। और इसी प्रकार जो पर्सनल लॉज है उसमें विडो जो है वो अपने ससुर से मेंटेनेंस की हकदार है। और जैसे मैंने बताया कि बच्चे अपने पिता से, और एक आप नया जो अभी रिसेंट लॉ आया है वो सीनियर सिटीजन का लॉ आता है, उसमें वो सीनियर सिटीजन जो पेरेंट्स हैं वो अपने बेटा और बेटी दोनों से मेंटेनेंस के हकदार है। और इसके चलते जो ये मेंटेनेंस है ये महिलाओं को अन्य और सोर्सेज से भी मिलती है, जो मतलब प्रोविजन है, जैसे अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में या
या आप हिंदू मैरिज एक्ट में जब मुकदमा डालते हैं, मतलब जैसे तलाक का मुकदमा डालते हैं, या आप जुडिशियल सेपरेशन या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मुकदमा डालते हैं, तो उसमें प्रोविजन है कि आप उसी के अंदर खर्चे का या मेंटेनेंस का आप मुकदमा भी डाल सकते हैं, पिटीशन भी डाल सकते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने 125 सीआरपीसी बताया, उसके अलावा पर्सनल लॉज पे भी मेंटेनेंस के लॉज हैं, मेंटेनेंस गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट है, और मेंटेनेंस का लॉ है पर्सनल लॉज में भी। डोमेस्टिक वायलेंस में जो भी थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगी, उसमें भी मेंटेनेंस का प्रोविजन लिखा गया है। और आगे हम चलते हैं तो एक और जो कॉन्सेप्ट जो कि मैं शुरू में भी कह सकती थी, पर बीच में कहना मुझे ज्यादा उचित लगा कि हमें थोड़ा सा कानूनों के बारे में पता चल जाता है, तो हम इसकी बात करते हैं। तो डाउरी की जो हम कहानी है, और वो हमारे उस कल्चर से आती है जिसमें ऐसा था कि लड़की को लड़के को दुल्हन को दूल्हे को दिया जाता था, और क्योंकि दिया जा रहा है तो उसके साथ वरद दक्षिणा भी लड़की के माता पिता लड़के को देते थे। और ये वरद दक्षिणा आउट ऑफ अफेक्शन और लव था, किसी प्रकार का कंपल्शन इस और कंसिडरेशन मैरिज का वो नहीं बनता था। परंतु आज हम देखते हैं कि ये जो वॉलंटरी एलिमेंट था गिफ्ट का, वो आज एक दहेज के रूप में, बहुत विकराल रूप में समाज में फैला हुआ है। और ये मोटा मोटा ग्रूम्स प्राइस, मतलब लड़के का दाम लगाने वाला एक एस्पेक्ट बन गया है। और इसके साथ चलते, मतलब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, जिस एक्ट में हम ये मानते हैं कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध हैं। फिर भी हम अमूमन हमें शादियों में देखते हैं कि गेट के बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मतलब दहेज लेना और देना बिल्कुल ब्लेटेंटली हम लेते और देते हैं, मतलब उसकी बात करते हैं। और उस पे मुझे लगता है, क्योंकि हम जेंडर जस्टिस की बात कर रहे हैं, एवोल्यूशन ऑफ जेंडर जस्ट लॉज की बात कर रहे हैं, तो मैं जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं जरूर इस बात को कहती हूँ कि कानून बन जाने से तो समस्या या परिस्थितियां नहीं बदलती हैं। जब तक समाज उस चीज को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता है, तब तक परिस्थितियां नहीं बदलती हैं। और मैं उसका उदाहरण इन दोनों कानूनों के बीच में एक कंपैरिजन या उदाहरण देके अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ, कि जैसे अबोलिशन ऑफ सती एक्ट है, जैसे सती का समाप्त करने का कानून बना, तो हम देखते हैं कि समाज ने क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया, तो सती आज समाज से हमारे पूरी तरह बाहर है। मतलब हम इस समाज को मान सकते हैं कि सती के अभिशाप से हम पूरी तरह मुक्त हुए। सिमिलरली जो विडो मैरिज एक्ट है, तो हम अपनी अपनी व्यक्तिगत लोगों की समस्याएं या उनके कारण हो सकते हैं, परंतु बाय एंड लार्ज समाज में विडो रीमैरिज को लेकर कोई ऐसी रिलक्टेंस नहीं है। लोग एक विडो की रीमैरिज के बाद तैयार होते हैं, लड़के भी शादी करने को तैयार होते हैं, परिवार भी शादी करने को तैयार होता है। पर जहां तक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात है, तो मैं ये मुझे ऐसा लगता है, और मैं इसको ऑब्जर्व करती हूँ, कि समाज अभी डाउरी रहित, मतलब दहेज रहित विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। जब वो लड़की भी एक अच्छी आईएएस अधिकारी हो सकती है या अच्छी कमाने वाली लड़की हो सकती है, पर फिर भी शादी की पूरी जिम्मेदारी लड़की के परिवार पर रहती है, और लड़के के परिवार को ऑनर किया जाता है, उनको गिफ्ट दी जाती है, उनको पैसे दिए जाते हैं, और शादी का सारा खर्चा भी लड़की के परिवार के द्वारा किया जाता है, और इसमें दहेज भी शामिल होता है। तो मुझे लगता है हम बातचीत जो कर रहे हैं, वो हमारी जो चर्चा है, उसका अल्टीमेट पर्पस तभी सर्व होता है जब हम एमर्ज करते हैं कि हमने इस डिस्कशन में क्या निकला। छोटी छोटी चीजें हैं, पर अगर हम मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि हम दहेज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब हम इस पूरे सिस्टम से दहेज को बाहर निकालेंगे। लड़कियों को भी ये सोचना होगा कि हमें दहेज नहीं लेना, और लड़कों को भी ये सोचना होगा कि हमें दहेज नहीं लेना, और शादी का जो भी खर्चा है वो सब दोनों पक्ष मिलकर करेंगे, तो शायद तब हम मान पाएंगे कि जेंडर जस्ट लॉज के तरफ इवोल्यूशन जो है हमारी और फासन होगी, और हम एक जेंडर जस्ट सोसाइटी को
देखने के लिए जेंडर जस्ट सोसाइटी का जो हम इमेजिन करते हैं, जो उसके लिए सपना देखते हैं, वो हमें पूरा होता दिखेगा। और यही दहेज से जुड़े हुए जब हम बात कर रहे हैं, तो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट तो जैसे मैंने बताया, और रिसेंटली ऐड होता है जिसको हम डॉरी से रिलेटेड जो क्रुअलिटीज होती हैं लड़की के ऊपर, दहेज से संबंधित जो अत्याचार किए जाते हैं उसके पति के द्वारा या पति के रिश्तेदारों के द्वारा, तो उसके लिए कानून 498A आईपीसी, मतलब इंडियन पिनल कोड का कानून है 498A। और वहीं पर जिसको डाउरी डेथ, बहुत से लोग, और इसको भी लोग डाउरी का केस डाल दिया, मतलब जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में केस चलता है, तो मोटा मोटी इसको लोग डाउरी का केस ही कहते हैं। 304 भी जिसको डाउरी डेथ कहते हैं, अगर शादी के 7 साल के भीतर लड़की की अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में डेथ होती है और उससे पहले उससे दहेज का मांग की जाती है, तो उसको डाउरी डेथ कहा जाता है, और उसके लिए अलग प्रकार के एविडेंशियल वैल्यू है। और मतलब कानून उस चीज को एक्सेप्ट करता है कि ये लड़की को दहेज के कारण मारा गया। इसी कानून के जो श्रृंखला में आता है 406 आईपीसी, जिसमें कि जो दहेज का सामान लड़की को नहीं मिलता है, उसके ससुराल वाले या पति और रिश्तेदार उसके दहेज के सामान को रख लेते हैं, तो कहा जाता है कि उसकी जो संपत्ति थी उसको मिस अप्रोप्रिएट किया गया, और वो मिस अप्रोप्रिएशन का सेक्शन बनता है सेक्शन 406 आईपीसी। ये सभी संज्ञेय अपराध है, संज्ञान लिया जाता है, एफआईआर उसकी दर्ज की जाती है। इसलिए डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 3 और 4 दो सेक्शन लगते हैं जिनके अंदर एफआईआर दर्ज होती है। तो जब भी डॉरी का कोई केस होता है तो ऐसे कॉम्बो प्लान है जिसमें सेक्शन 3-4 आईपीसी लगता है और सेक्शन 498A और 406 आईपीसी लगाया जाता है। और इस दहेज के मुकदमों को लेकर भी एक बड़ी डिबेट चलती है, कभी कुछ सही और कुछ गलत भी है, कि लड़कियां इस दहेज के कानून को मिसयूज करती हैं, जिसके चलते वो बुजुर्ग माता पिता पे या नंद पे या लड़कों पे भी बेबुनियादी दहेज के मुकदमे डालती हैं। और वो कुछ हद तक सही भी है, पर एक उसका भी इंसाइट है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है उसमें, अच्छा जब दहेज का मुकदमा डलता है, क्रिमिनल केस चलता है, तो जैसे कि सभी ये निर्देश है, कोर्ट्स के द्वारा निर्देश दिए गए कि दहेज के केस में सीधी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तो वो केस पहले सीएडब्ल्यू सेल में जाता है, जहाँ के पहले कंसिलिएशन या मीडिएशन का प्रोसेस शुरू किया जाता है। और उस प्रोसेस में जो बात शुरू होती है कि भाई तो लड़की ने शादी पे कितना पैसा खर्च किया है और लड़का कितने पैसे देगा। अगर वो लड़का उतने पैसे दे देता है और लड़की उस पैसे पे राजी हो जाती है, तो केस दर्ज नहीं होता। मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहूंगी अपनी बात को, कि केस, क्रिमिनल केस जो डाला जाता है वो बेसिकली पैसे लेने के लिए, और पैसे भी क्या, कि शादी पे इतना खर्चा हुआ। तो क्योंकि हमारे सिस्टम में, अभी मैं जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे आऊंगी, तो सिस्टम में वो प्रोविजन नहीं है जिसमें कि लड़की अगर शादी टूटती है तो लड़की को कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, उसको लेके कोई सिस्टम नहीं है। तो क्योंकि वहां पे कुछ नहीं है, तो लड़की को लगता है जब मेरी शादी टूटी, मेरा नुकसान हुआ, या लड़की के परिवार वालों को, तो कॉम्पनसेशन होना चाहिए। तो कॉम्पनसेशन होना चाहिए, कॉम्पनसेशन के नाम पर क्रिमिनल केस डाला जाता है। तो ये भी एक इंसाइट है जिसको हम कैसे इवॉल्व करते हैं। और सभी लोग मिसयूज करते हैं ऐसा नहीं है, कुछ लोग मिसयूज करते हैं, पर जो लड़कियां जो सही में दहेज के भुक्तभोगी होती भी हैं, उनको भी न्याय मिलना कोई आसान नहीं है। और मैं तो जैसे आयोग में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 5 साल थी, तो मैंने देखा कि अभी तक डॉरी डेथ के केसेस होते हैं, मतलब अभी तक लड़कियों को दहेज के नाम पर मरती है या मारा जाता है, उनका अंतिम संस्कार बिना किसी मेडिकल के, बिना किसी पोस्टमार्टम के कर दिया जाता है। ये केसेस आज भी प्रेवलेंट है कि माता पिता को पता नहीं चलता। और ये जो मिली भगत होती है ना, कि लड़के वाले और पुलिस और आसपास के अधिकारी वो मिली भगत में, जैसे लड़की की डेथ हुई तो उसके किन परिस्थितियों में उसकी डेथ हुई उसको एक्सप्लोर किए बगैर, उसका अंतिम संस्कार करके उसके माता पिता को बताए बगैर, फिर सारी की सारा जो सिस्टम है वो मतलब हेल्पलेसनेस आ जाती है। तो इस तरह की चीजें अभी भी चल रही हैं। लड़कियों को अगर आत्महत्या, तो वो भी डॉरी डेथ की कैटेगरी में ही आता है।
तो मैं पुलिस के मैं केसेस देखती हूँ कि जब लड़की आत्महत्या करती है तो उसको एक अननेचुरल डेथ करके केस को बंद कर दिया जाता है, पर डॉरी डेथ ना भी हो पर अगर कोई लड़की आत्महत्या करती है तो एक मुकदमा बनता है जिसको कहते होता है सुसाइड, मतलब सेक्शन 307 आईपीसी शायद है, मे बी आई मे बी रॉन्ग, बट उसमें जो कोई आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है वो अपराधी है और उसके चलते उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। परंतु ऐसा पाया जाता है कि पुलिस उस आत्महत्या के केस को एकदम से अननेचुरल डेथ करके बिना एफआईआर दर्ज करे, बिना मेडिकल एग्जामिनेशन कराए केसों को बंद कर देती है। और जो कुछ कानून रिसेंट कानून है वो फीमेल फीटिसाइड को लेके जो लॉ आया, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1994, जिसमें कि आपको महिला माँ या उसके परिवार वाले अगर बच्चे को टेस्ट करके कि वो फीटस लड़का है या लड़की अगर वो करते हैं तो वो अपराध है। इससे जो हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, तो वो इसीलिए है कि बेटियों को आज भी जन्म लेने में लोग बहुत से लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, वेलकम नहीं करते, तो जिसके चलते ये प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट बनाया गया। और ये भी इसके भी कुछ इंसाइट्स है कि ये कानून बनता है परंतु इसको कानून को लागू कराना कोई आसान नहीं है, कि मतलब जो करने वाला भी राजी है, जो अपना डायग्नोस करा रहा है वो भी राजी है और जो डॉक्टर उसका डायग्नोस कर रहा है वो भी राजी है। तो ये सीक्रेटली या कॉन्फिडेंटली चीजें हो जाती हैं। और अगर हम चाहते हैं तो कि इसका, और आजकल के जो रिसेंट टाइम्स में हम सुनते नहीं है कि इस पीएनडीटी एक्ट जिसको बोलते हैं कि कोई उसके बारे में कोई अवेयरनेस आ रही है। पहले ऐसे एड्स में सुना करती थी कि बच्चे को गिराना अपराध है, लड़की का आप फीटस डिटरमिन करना अपराध है, पर उस तरह की कुछ अवेयरनेस या एड्स आज के समय में मुझे नहीं सुनाई देती। तो मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता है, क्योंकि आज भी दक्षिण में, मैं पीछे एक स्टडी करी थी एनएचआरसी में, पढ़े लिखे समाज में महिलाओं की, बच्चों की जो जन्म है, लड़कियों की जन्म कम हो रहा है और उसको काफी चिंता का जो विषय है। और मतलब जो अपनी बात को मैं यहाँ पे इस विषय पर कहना चाहती हूँ कि हमें इसको चर्चा में लाना चाहिए, हमें पीएनडीटी एक्ट को डिस्कस करना चाहिए, कि अल्टीमेटली जो अगर लड़कियों को जन्म की संख्या कम होती है, और कुछ राज्य में ऐसा मैंने देखा है कि एक बार कम होती है फिर बढ़ती है फिर कम होती है, उनके कानून में जाना चाहिए कि क्यों लड़कियों का जन्म, लड़कियां और जो जन्म है उस समय 1 साल की आयु तक जन्म का एट बर्थ, सेक्स रेशियो एट बर्थ, ना कि आप पूरे पुरुषों को और पूरी महिलाओं को आंकड़ा दे दें। तो ये भी कुछ इंसाइट्स है जो समझने की बात है कि किस तरह से हम लड़कियों की और लड़कों की जन्म की संख्या के जन्म पे संख्या को कैसे डिटरमिन करते हैं, उसको लेके भी कुछ फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। पर समझने के लिए मैं कहती हूँ कि उस गत वर्ष में, उस साल में कितनी लड़कियां जन्म ली और कितने लड़कों ने जन्म लिया, ये हम अपने जो रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ है उसके आंकड़ों से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं और उसके ऊपर हम अपना एक स्टडी कर सकते हैं कि एक्चुअली कितने साल में, 1 साल में कितने लड़के और कितनी लड़कियां पैदा हुई, और उसको बोलते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, तो वहां से ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इसको लेके भी कानून है आईपीसी में, सेक्शन 312 है, और एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है। मतलब जैसे मैंने बताया कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट है, तो कि आप टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं करा सकते, परंतु मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है जो कि स्पेसिफाई करता है कि किन कंडीशंस में आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकते हैं। मतलब उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां जैसे फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब जो आप गर्भ निरोधक इस्तेमाल कर रहे थे वो फेल होता है, या बच्चे और माँ की हेल्थ को लेके जो कंडीशन हो सकती है, तो वो परिस्थितियां हैं जिसमें कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का प्रोविजन दिया गया, जहां मिसकैरेज को सेक्शन 312 में अपराध माना, पर फिर भी जैसे बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ जेंडर जस्ट लॉ, तो ये समझते हुए कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराई जाए, तो ये कानून बनता है। और जैसे मैंने कहा कि 1829 में हम घूम रहे थे कि सती नहीं होना चाहिए, लड़की को, पत्नी को पति की चिता पे नहीं चलना चाहिए,
पर 2005 में आते आते हम इस बात पर पहुंच गए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, कि भाई जो वायलेंस है ना वो इवन इमोशनल, सेक्सुअल, वर्बल, इकोनॉमिक और फिजिकल भी हो सकता है। मतलब हम इतनी समझ हमें आती, जहां दहेज के लिए लड़कियों के मर जाने पर 304 में गए थे, 304 भी मतलब डॉरी डेथ, तो आज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हम इमोशनल अब्यूज की बात करते हैं कि भावनात्मक अगर अब्यूज हो रहा है तो वो गलत है, और सेक्सुअल अब्यूज की बात करते हैं कि अगर पति भी पत्नी के साथ या परिवार का कोई सदस्य महिला के साथ सेक्सुअली उसको अब्यूज करता है तो वो गलत है। और फिजिकल, जैसे मैंने बताया कि मारपीट करता है तो वो गलत है, अगर वर्बल गाली गलौज देता है तो वो गलत है। इकोनॉमिक अब्यूज मतलब अगर उसको पैसे, पूरी तरह से पैसे नहीं देता या उसकी तनख्वाह के पैसे उससे ले लेता है, तो ये हम इतने रिफाइंड आज उस स्टेज पर है। अगर हमारे कानूनों की बात हो और महिला से संबंधित कानूनों की बात हो, एवोल्यूशन ऑफ जेंडर जस्ट लॉज की बात हो, तो लॉ आज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वो बहुत ही रैशनल और बहुत ही लॉजिकल लॉ है, क्योंकि हर प्रकार से, और ये क्रिमिनल भी नहीं है ये लॉ। अगर एक जो जहाँ पे मुकदमा इसमें डलता है तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, कोर्ट में मुकदमा डलता है, कोर्ट में कोर्ट ऑर्डर करता है कि ये फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल, वर्बल या इकोनॉमिक और इमोशनल अब्यूज रुकना चाहिए। अगर वो रुकता नहीं है तो फिर 1 साल के अगर वो लागू नहीं होता तो क्रिमिनल केस में जा सकते हैं, परंतु अपने आप में ये एक सिविल रेमेडी है। और यही लॉ ऐसा था जिसने कि एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि पत्नी के अलावा भी एक रिलेशनशिप है जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, जो का आम भाषा में जिसको लोग लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं, तो पर इसको कानून ने नाम दिया रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। मतलब कि वो ऐसा संबंध जिसमें कि शादी जैसा वो संबंध है परंतु वो शादी नहीं है, तो वो महिलाओं को भी जो सुरक्षा है ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट देता है। और इसमें मेंटेनेंस का भी प्रोविजन है, इसी कानून में मेंटेनेंस भी मिल सकती है, बच्चों की कस्टडी को लेके भी प्रोविजन है। और अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर वायलेट होता है, माना नहीं जाता, तो फिर एक अपराध बनता है जिसमें 1 साल की सजा तक का प्रावधान हो सकता है। और फाइनली मुझे लगता है कि हमारी बात नहीं, एक प्रॉपर्टी को मैं और डिस्कस करूंगी लास्ट बट वन में। इम्पोर्टेंट एक लॉ जिसको डिस्कस करना चाहती हूँ वो है सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। 1997 में जजमेंट आई थी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और जब वो जजमेंट आई तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सभी गाइडलाइंस इशू करी और सेक्सुअल हैरासमेंट क्या है वो डिफाइन किया, वर्क प्लेस क्या है वो डिफाइन किया, और ये कहा कि सेफ वर्किंग प्लेस इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द वुमेन। अगर हम उनको सेफ वर्किंग प्लेस नहीं दे पाएंगे तो हम ये अपेक्षा ना करें कि हमारी महिलाएं कुछ परफॉर्म कर पाएंगी, क्योंकि वो डर के अंदर जिएंगी। और उसके बाद 2013 में ये जो कानून बनता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। मतलब किस तरह से ये कानून ऐसा कानून है जो कि सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन करने के साथ साथ जो एम्प्लॉयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशन को डिसाइड करता है। कानून ये भी बताता है कि किस प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट को डील किया जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट में कैसे कंप्लेंट होगी, कितनी देर में उसका निपटारा होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या लेकर क्या प्रोविजंस है, इस कंप्लेंट के खिलाफ अगर इस ऑर्डर के खिलाफ अगर अपील जाना है तो कहाँ अपील जाएगी। तो अपने आप में पूरा एक कानून ये है सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर। महिलाओं की जो एक बड़ी, जो मैंने संपत्ति के अधिकार की बात की थी 1937 में, 1956 में सक्सेशन एक्ट आता है, इंडियन सक्सेशन एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट। मोटा मोटी जो बात करता है वो ये कहता है कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसकी माँ को बराबर का हिस्सा मिलेगा। बच्चों में लड़का और लड़की दोनों है। इसी प्रकार अगर पत्नी की मृत्यु होती है तो उसके पति और उसके बच्चों को उसकी माँ की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पर सक्सेशन में 1956 में जो सक्सेशन आता है उसमें बेटा और बेटी को सक्सेशन में, मतलब मृत्यु के बाद जो अधिकार मिलने, उसमें बराबर का अधिकार दिया गया कि बेटा और बेटी बराबर के इनहेरिट करेंगे प्रॉपर्टी को। और ये ही जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2006 की जो अमेंडमेंट है उसमें
सक्सेशन के साथ साथ को पार्टनरी राइट दिया गया कि बेटी जो है वो को पार्टनरी होगी, मतलब जन्म के साथ ही उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा। पर ये भी एक इंसाइट है कि आज की तारीख में बहुत सारी प्रॉपर्टीज एंसेस्ट्रल नहीं है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, और जो राइट मिलता है बेटा और बेटी को बराबर का सक्सेशन का मरने के बाद, उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। उसके लिए प्रोविजन है कि कोई आप वसीयत बना देते हैं और अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर देते हैं या अपनी पत्नी के नाम कर देते हैं। और आखिरी में मेरा एक बड़ा विशेष जो कानून है वो मुझे लगता है कि हमें उस पर बात करनी चाहिए। विमेन रिजर्वेशन बिल 1996 में राज्यसभा में 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, तो ये बिल को पेश किया गया था और राज्यसभा में ये बिल पास भी होता है। और मुझे ध्यान है कि जब सुषमा स्वराज जी और वृंदा करात एक मैंने अखबार में वो फोटो मेरे को ध्यान है, सबने सभी दलों की महिलाओं ने हाथ मिलाकर ऊपर हाथ खड़े किए हुए थे, और अरुण जेटली जी जब बोल रहे थे राज्यसभा में, क्योंकि वो प्रेजेंट थे, तो बोल रहे थे कि आज इस कानून के बाद महिलाओं को लेवल प्ले फील्ड मिलेगा, मतलब खेलने के लिए बराबर का मैदान मिलेगा। परंतु उस लोकसभा के समाप्त होने के साथ वो बिल भी लैप्स कर गया। जब हम आज जेंडर जस्ट लॉज की बात कर रहे हैं तो हम ये समझें कि हमारी महिलाएं राजनीति में नहीं आ पा रही हैं, राजनीति में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो 11% पा रहा। आज की हमारी लोकसभा सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ विमेन पार्लियामेंटेरियंस है, तो तब भी महिलाओं की जो परसेंटेज है दैट्स अराउंड 13% और सो। तो महिलाएं इस व्यवस्था में चुनाव लड़कर नहीं सामने आ पा रही है, नहीं हो पा रहा। ये हम 70-75 सालों में देख लिए। तो हमें चाहिए कि महिलाओं के लिए ताकि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन ऑन दी अपर एकोलॉन्स ऑफ पावर, मतलब जो सत्ता के जो ऊपर के जो द्वार है, जो सेंटर्स हैं, वहां पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो। तो मुझे लगता है कि हमें इस रिजर्वेशन के ऊपर कि रिजर्वेशन के द्वारा महिलाओं को मौका मिले और हम ज्यादा महिलाएं हमारी डिसीजन मेकिंग पावर्स में हो। And thank you very much. I conclude and I'm open for any kind of a question. धन्यवाद मैडम, आपका बहुत ही सुंदर, विस्तृत और अद्भुत वक्तव्य रहा है। आपने जिस तरह से विस्तृत रूप में महिला संबंधित कानूनों की जानकारी दी है और जितने मार्मिक ढंग से हमारे समाज की सच्चाई की प्रस्तुति की है, तो सचमुच में हम सब के लिए एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का सेशन है। एंड अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने प्रतिभागियों से कि मैडम के यहाँ होने का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। अगर आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न, शंका, कोई संशय है या आप कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं मैडम से, तो आप अपना प्रश्न यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क, और नहीं तो आप लिख के भी बात कर सकते हैं। यस, Mrinmay ji, you have raised your hand. Kindly ask your question. Yeah, thank you, madam, for the lecture. I am myself doctor. I am anesthesiologist, and I wanted to know that doctors are punished for doing sex determination, right? So, is there any law which will punish the person who is asking for the sex determination? No, the laws punishes both. It is not doctors alone. That's what I said in the beginning. That आप जो जिसने सेक्स डिटर्मिनेशन करा रहा है वो भी राजी है, जो कर रहा है वो भी राजी है, इसलिए वो डिस्क्लोज नहीं हो पाता। बट एज फार एज द लॉ इज कंसर्न, प्रीनेटल डायग्नोसिस PNDT एक्ट, इट पनिशेस बोथ द पर्सन। ऐसे ये आते हैं, लोग पूछते हैं कि हमें करना है तो आप करेंगे क्या? तो इन दैट केस हम पुलिस केस फाइल कर सकते हैं? Yes. Okay. It would be very good on your part if you complain to the local police station that they approached us, and with this query, it would be a real great service. Yeah. Okay. It would Okay. be great service. Yeah. Thank you. We have another question, madam. ये अर्चना जी ने लिखा है, Madam, kindly throw some light on marital rape and increasing age of marriage for girls, that is from 18 to 21. Yes, sir, that is only a proposal as of now. I mean, the government of India has proposed. I think there was an amendment in the Child Marriage Restraint Act. I mean, prohibition of child. Now it is being called as Prohibition of Child Marriage Act 2016, I suppose. The amendment was proposed in that very law, which had proposed to increase the age of the girls from 18 to 21.
पर वो कानून सभी धर्मों पे लागू होता है। जैसे मैंने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट के लिए भी बताया, तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज भी सभी कानूनों पे एक साथ लागू होता है, एक बराबर लागू होता है। परंतु आज की तारीख में वो कानून को सिलेक्ट कमेटी को दे दिया गया है। तो अभी वर्तमान में लोकसभा में पेश हुआ, वो सिलेक्ट कमेटी के पास है। तो वर्तमान में यही उसका स्टेटस है, और इसके बियॉन्ड कुछ कहा नहीं जा सकता कानून की स्थिति के बारे में। और मैरिटल रेप के बारे में देखिए, जो आईपीसी में प्रावधान है, जब 376 रेप जहां पे डिफाइन होता है, तो वहां पे एक प्रोवाइजो दिया गया है कि अगर वो पत्नी होगी और 15 साल से जो आयु है उससे पत्नी है और उसकी आयु 15 साल से अधिक है, आयु का कुछ होगा, तो वो रेप नहीं माना जाएगा। तो इस तरह का प्रोवाइजो आईपीसी में दिया गया है। और उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस चलता है कि पति को अधिकार कैसे दिया जा सकता है कि वो अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि वो पति है, क्योंकि वहां पे ये लॉजिक आता है कि प्रिज्यूम्ड, क्योंकि वो पति है तो एक प्रिज्यूम्ड उसको, मतलब एक टैसिट, मतलब समाज के द्वारा उसको परमिशन है कि वो सेक्स अपनी पत्नी के साथ कर सकता है। परंतु उसका जो काउंटर नैरेटिव निकल के आता है कि सेक्स कर पाने के साथ क्या उसको एक बलात्कार करने का अधिकार मिल जाता है, तो वो एक एस्पेक्ट है। और दूसरी बात, मैं अभी इस मैरिटल रेप के साथ एक और बात जोड़ना चाहूंगी कि आज की जो रेप की डेफिनेशन है 376 की, 2013 से पहले जो रेप की डेफिनेशन होती थी वो वजाइना पेनिस इंटरकोर्स होता था, मतलब कि पेनिस वजाइना के अंदर जाएगा तो उस इंटरकोर्स से रेप की बात बनती थी, मतलब रेप का डेफिनेशन निकलता था। परंतु आज की तारीख में रेप की डेफिनेशन बहुत ही एक्सपैंडेड डेफिनेशन है, जिसमें अगर पेनिस महिला के मुंह में भी रखता है तो वो रेप है, या फिर वो लिक करता है उसके वजाइना को तो वो भी रेप है, या फिर वो टच करता है, तो इस तरह से वो बहुत ही एक्सपैंडेड डेफिनेशन है रेप की। तो जब हम मैरिटल रेप में जाते हैं तो ये कोई बहुत जल्दी से उसका फैसला लिए जाने वाला मुझे नहीं लगता कि ये एक विषय है। बहुत, आप ये कहते हैं कि मैरिटल रेप होना चाहिए, तो ये भी इतनी आसान बात नहीं है। और मैरिटल, और ये भी मान्यता, ये भी बात मैं मानूंगी कि पति को कोई राइट भी नहीं है कि वो अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार से सेक्स करे कि वो उससे प्रताड़ित हो। तो आप, वो हाईकोर्ट में चल रहा था, काफी तेजी से वो मुकदमा चल रहा था, पर आज अब कोई खबर में वो सुनाई में नहीं दे रहा। तो एक बैलेंस आउट हम कैसे करते हैं, कैसे हम, हमारा जो मकसद है कि शादीशुदा महिला सुरक्षित होनी चाहिए, अपने पति के हाथों से उसके ऊपर बलात्कार नहीं होना चाहिए, हम मानते हैं। परंतु किस तरह से, क्योंकि हमारे सिस्टम, हमारे जो क्रिमिनल लॉ सिस्टम है, और आज हम डॉरी को भी कहते हैं कि उसको मिसयूज किया जाता है। तो क्या एक नॉर्मल पति पत्नी का जो सेक्स का जो प्रोसीजर है या जो प्रोसेस है, वो ऐसा बन जाएगा कि उसमें आप एक क्राइम दर्ज हो जाएगा? तो एक चर्चा का विषय शायद इतनी डिटेल में या उतनी डेप्थ में इस फोरम पे हम इस विषय पर चर्चा शायद नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद मैम। अनगा जी ने इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए पूछा है कि शुड इट नॉट बी inconsistency with the age of consent? 15 years is too short of the consent age. नहीं, वो तो मैंने पहले ही बोला ना कि आज वर्तमान में ये स्थिति है। तो मैं ये कह रही हूँ कि एक ऐसा ये स्टेटमेंट भी नहीं हो सकता कि पति को आप बलात्कार करने का अधिकार दे दें। पर आज रेप की डेफिनेशन को देखते हुए, जिसमें कोई मेडिकल एविडेंस भी नहीं आ पाती आपको, तो पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स में एक मेडिकल एविडेंस होती थी, आपके वेजाइना का स्वाब लिया तो उसमें स्पर्म्स हैं या नहीं है। परंतु आज जिस तरह की रेप की डेफिनेशन है, उसमें कोई आपको फॉरेंसिक या मेडिकल एविडेंस मिलने का भी स्कोप नहीं है। तो एक थोड़ा, मतलब मैंने वही कह रही हूँ कि गंभीर विषय है और बहुत सारी इंटरसेक्शनैलिटी इन्वॉल्व है इसमें, इंटरडिसिप्लिनरी इन्वॉल्व है। तो आज हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, जस्ट एक रेफरेंस के तौर पर हम बात कर सकते हैं। पर अगर हम डिटेल में कभी चाहें तो इसके ऊपर बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं विषय क्या है, फिर क्या होना चाहिए, उसके बाद की आगे की बात। धन्यवाद मैम। ममता सिंह जी हैज रेज्ड हर हैंड। आप अपना प्रश्न पूछे ममता जी।
मेरा प्रश्न ये है, आपने मैडम नमस्कार, बहुत ही अच्छा आज सेशन रहा। मेरा ये है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कहा कि पेरेंट्स बच्चों को हक पूरा मिलेगा, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे ये समझाएं कि उसमें पूरा हक हमें कैसे कि वो क्या इम्प्लीमेंट हो चुका है। मैं बताती हूँ, 1 मिनट में बता देती हूँ। 1956 में आया था कि सक्सेशन में, मतलब पिता या माँ की मृत्यु के बाद जो संपत्ति में अधिकार लड़का, बेटा और बेटी को बराबर का मिलेगा। तो 1956 में कानून आ गया। और मैंने अपनी बातचीत में बोला था कि आज क्या होता है कि क्योंकि बेटी को अधिकार मिलता है, तो कुछ लोग पहले ही वसीयत कर देते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति जो है मेरी बेटी को ना मिलके सारी संपत्ति मेरे बेटे को मिले। तो एक वो तरीका होता है जिससे आप बेटियों को उनके संपत्ति के अधिकार से महरूम कर देते हो। या फिर दूसरा तरीका होता है, अगर वसीयत नहीं भी हुई तो बेटियों को ये कहा जाता है कि आप अपनी रिलिंक्विश, अपनी जो संपत्ति में जो आपका अधिकार है वो रिलिंक्विश कर दो अपनी भाई के नाम पर। और मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, मेरी माँ की संपत्ति थी और मेरी माँ ने मेरे और मेरे भाई के नाम दो ही थे, तो हमारे ज्वाइंट बिल की थी, दोनों को मिलेगी। जब हम उस बिल से उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कराने गए रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो मेरे खुद थे वो, तो जो रजिस्ट्रार था वो खोल कर कागज देख रहा था। उसने मुझे देख के बोला कि आरडी का है, मतलब रिलिंक्विशमेंट डीड का है। मतलब वो मेरे खुद को, उसको ये बिल्कुल कल्पना नहीं थी कि एक जो बेटी है उसको संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, कि रिलिंक्विशमेंट डीड वो भी ढूंढ रहा था कि भैया आरडी का है। तो कानून है, और अगर आप आरडी नहीं करते, आप रिलिंक्विशमेंट डीड नहीं करते, तो आपको उसमें अधिकार है। अगर आपके परिवार वाले वो आपको अधिकार को नहीं देते, तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, जिसको सूट फॉर पार्टीशन कहते हैं, जिसमें कि आप उस संपत्ति में अपने अधिकार के लिए मुकदमा डालते हो और अपना अधिकार लेते हैं। बराबर का जितना आपके भाई का अधिकार है वैसे ही आपको अधिकार हो। सिंधु, आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट क्वेश्चन, आई सपोज। जी जी, एक ले ले मैम, जैसा हाँ, लास्ट यार। जी। अंशु हांडा जी, आप हाँ। अपना प्रश्न ले सकते हैं। जी जी, गुड इवनिंग मैम। मैम, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे सेल्फ डिफेंस पे एक जगह ये सुना था कि कहीं इफ़ यू यूज़ अ वेपन, से स्विस नाइफ और एनीथिंग सेल्फ डिफेंस के लिए, एंड हार्म दी पर्सन हु इज ट्राइंग टू हार्म अस बीइंग फीमेल, तो फिर कहीं ये सुना कि यू हैव टू देन प्रूव कि वो ही वॉज ट्राइंग टू हार्म यू। तो हर जगह सीसीटीवी या हम कैमरा, तो आई वॉज स्टिल नॉट श्योर कि बिकॉज एक जगह बोला जाता है ना कि एवरीवन शुड कैरी सम सेल्फ डिफेंस वेपन, फीमेल्स, और दूसरी जगह कि प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो केस तुम पे हो जाएगा। सो कैन यू गाइड अस लिटिल एंड गिव क्लैरिटी मैम? इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। कानून की हर चीज में प्रूव मांगता है। अगर आप कहते हो मेरे साथ एक्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, तो कानून उसका सबूत मांगता है। अगर आप कहते हो कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, तो कानून, क्योंकि अगर कानून तो अंधा है ना, कानून के आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो जब तक आप सबूत नहीं दोगे, तो फिर वो जो मिसयूज वाली बात होती है, आपने किसी को इंटेंशनली, आपके पास चाकू था, आपने उसको मार दिया, और तो कैसे कोई डिस्टिंग्विश करेगा कि आपके ऊपर हमला हो रहा था, आपने सेल्फ डिफेंस में मारा। और वो सेल्फ डिफेंस का लॉ तो महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है, वो जनरल लॉ है सेल्फ डिफेंस का। सेल्फ डिफेंस में प्रोपोर्शनेटली अपने को बचाने के लिए आप हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने को बचाने के लिए। वो यूनिफॉर्मली एविडेंस एक्ट में या आई थिंक सीआरपीसी में वो सेक्शंस हैं, जो कि पुलिस के पास भी वो लॉज होते हैं। तो इसलिए जब भी अगर सेल्फ डिफेंस की बात आएगी, तो आप सीसीटीवी से प्रूव करेंगे ऐसी बात नहीं है। आप अपनी गवाही से भी इस बात को प्रूव कर सकते हैं, आपकी एविडेंस से। आप ओरल एविडेंस के जरिए बताते हैं कि मैं यहाँ थी, मैं इस कोर्ट में थी, यहाँ पे थी, ये व्यक्ति आया, इसके हाथ में चाकू था, ये मेरे पे हमला कर रहा था, कि वो मुझे पकड़ के किस करना चाहता था, अपने को बचाव करने के लिए मैंने ऐसा किया। तो सेल्फ डिफेंस के लिए आप जो एविडेंस है, ऐसा नहीं कि आपको सीसीटीवी की एविडेंस चाहिए, आप अपनी ओरल एविडेंस से भी अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जिस तरह से हमारे प्रतिभागी आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे 1 घंटे का लेक्चर इसके लिए अनिवार्य नहीं हो सकता। बहुत ही प्रैक्टिकल इश्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं हमारी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। और ये बात समझ हम सबको आती है कि कानूनी जागरूकता, क्योंकि भारतवर्ष में महिलाओं के लिए कानून तो है, लेकिन जागरूकता पढ़ी लिखी महिलाओं में भी कम है।
और हम अगर ये डाउन ट्रोडन की बात करें तो वो बहुत दूर की बात है। तो यही शायद भारतीय स्त्री शक्ति और हम सब जो एनजीओज और जो एक्टिविस्ट हैं, हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि आपसे हम और भी इस तरह के सेशन लें, और ये जो परकोलेशन हो, इस जागरूकता की, अवेयरनेस की परकोलेशन हो, और हम खुद को भी इसके लिए लीगली तौर पे सक्षम करें, और अपने आसपास में भी उनको भी हम यहाँ पर संबल प्रदान करें। आपने इस बहुत इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर जो यू हैव थ्रोन द लाइट, वी आर हार्टिली थैंकफुल टू यू मैम, आवर ग्रैटिट्यूड, वी फील ऑब्लाइज्ड, many thanks. Thank you so much, and thanks to all of you for this patient listening, and I'm really honored. Thank you very much. Thank you ज्योतिका जी, thank you. Thank you. मैम, आपने इतना जो है इंक्विजिटिवनेस सब में रेस कर दिया है कि आपके फोन नंबर और आगे के प्रश्न भी कईयों के मन में है। ये अभी मैसेज ममता जी का है, तो मुझे लगता है हम ज्योति ताई से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इन फ्यूचर हम कोई और लीगल अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम Sure, पक्का। Subject wise, only on property, matrimonial laws, because then only we'll be able to do justice, because there are so much options. Yeah. करेक्ट, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगले सेशन में हमारे साथ आमंत्रित हैं, अगर आप चाहें तो। Thank you so much. I'll take your leave. Okay. Thank you ma'am. Thank you ज्योतिका जी, नमस्ते। Thank you. Sindhu ji, Sangeeta ji is here. Yes, she is very much with us since the beginning, and इतने अच्छे और जो माइंड ब्लोइंग सेशन के बाद, जिसमें उन्होंने हमारी जो मेंटल एक्टिविटी है फर्स्ट लेक्चर से, जो लॉस के ऊपर मैडम ज्योतिका कालरा जी ने दिया, तो उसके आगे अगर हम चाहें और प्रैक्टिकल सोसाइटी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखें, तो मुझे लगता है कि आज के ये दोनों ही विषय जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फ्रॉम लॉस टू गवर्नेंस। So on behalf of all my participants, co-participants, and all the three organizers, Browse, B.R. Ambedkar University of Social Sciences, Mau MP, Bharatiya Stri Shakti, and Heritage Society of Patna, इन तीनों के प्रावधान ने जो ये 3 क्रेडिट का कोर्स, 3 माह का कोर्स ऑन एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फेमिनिज्म जो ये आयोजित हो रहा है, उसमें आज की हमारी जो दूसरी वक्ता हैं, वे भी अपने आप में प्रबुद्ध महिला है, प्रखर वक्ता है, और इन्होंने अपने लिए समाज में स्पेशली इन गवर्नेंस एक बहुत ही बड़ा नाम अपने साथ किया है। वी आर सो प्राउड टू हैव अमंगस्ट अस मैडम संगीता गोडबोले जी। Ma'am, you will be speaking today on the topic participation of women in governance. Madam Sangeeta Godbole ji is Indian civil servant. To be precise, she belongs to the realm of Indian Revenue Services of 1989 batch and embodies a progressively rich and diverse combination of experience. Madam has already worked as Director General of Services Export Promotion Council India and also as Trade Negotiator for India. She has been Project Head of Digital Delivery of Tax Refunds. Madam Godbole is quite very learned and an expert government officer and has been in governance for a pretty long time. And Madam Godbole is Masters in International Affairs from Graduate Institute of Geneva. She has also done her Masters in French from University of Madras, Chennai. A multitasker, a distinguished speaker, is an effective policy analyst and a team builder, and hence an apt resource person on today's topic of women and governance. Over to you, Madam. We welcome you heartily and we request you to deliver your lecture because you have given your valuable time. We are indebted to you.
Many, many thanks. And we are so pleased to have you. We are so honored to have you on our this course today as the resource person. Thank you so much, ma'am. Over to you. Ma'am, kindly unmute yourself. Yes. Can you hear me? Yes, yes, very much. So nowadays, this is the first question to ask in any online meeting. Can you hear me? Well, thank you very much for inviting me to take this session. The University of Mao and also Bharatiya Stri Shakti and the Heritage Center of Patna. Before I begin, can I ask the participants to switch on their cameras just for a moment? Because it is very difficult to interact with anyone who is oh yes, oh, this is very nice. Thank you very much, and it's very nice to take a quick look at all of you. And after this, if necessary, you could switch off your cameras. I don't have any issue with that, but at least I know that all of you are awake and and listening to whatever I've been saying. Well, I am now a student in Geneva. I resigned from the Indian Revenue Service. I was the Principal Commissioner of Income Tax in Chennai. And now I am doing my Master's in International Affairs at the Graduate Institute in Geneva. Therefore, a complete role reversal. But let me tell you, it is very, very enjoyable. And this opportunity to speak about women in governance has given me another opportunity to do some research. मैं अपना presentation share करने की कोशिश करती हूँ. So today I would like to speak to you on the Indian woman in governance. आप सब लोग ये इंडियन फेमिनिज्म पे इतने दिनों से आपस में चर्चा कर रहे हैं, कई चीजों को सुन रहे हैं, और आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपके सामने विमेन इन इंडियन गवर्नेंस पे कुछ बात करूं. ये अगर आप देखेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो, आपको दिख रहा है क्या अच्छे से ये स्क्रीन? हाँ जी मैम, दिख रहा है. हाँ जी दिख रहे हैं. ओके, ग्रेट. आप अपनी इसमें अगर चेंज कर पाए तो पूरा देखें, जैसे कि देखें. आई एम नॉट वेरी श्योर. Right. So now the picture that you see here is the latest batch of the Indian Administrative Service meeting the President of India. और आपको इस पिक्चर से ही समझ में आएगा कि how many women are there. So you see a picture says many words. मैं इस प्रेजेंटेशन में पहले तो महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस पे थोड़ा चर्चा करना चाहूंगी. उसके बाद एंट्री लेवल पे क्या हो रहा है, कितने आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं. उसके बाद लीडरशिप लेवल पे जॉइंट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस लेवल पे क्या स्थिति है, विमेन कितने हैं, क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसमें इश्यूज कौन से हैं. पीएसयूज में क्या स्थिति है ऑफ विमेन एट लीडरशिप लेवल्स. उसके बाद इंटरनेशनल कंपैरिजन थोड़ा सा, एक कि भाई इंडिया का तो ठीक है, लेकिन और डेवलप्ड कंट्रीज में इस विषय में क्या हो रहा है, उस पे थोड़ा सा बात करेंगे. और फाइनली इन कंक्लूजन, रादर देन प्रेजेंटिंग अ कंक्लूजन, क्योंकि इस विषय में इतने आयाम हैं, इतने एंगल्स हैं, इतने फैक्ट्स हैं कि इसमें एक कंक्लूजन में ना प्रेजेंट करते हुए आई वुड लाइक टू रेज अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसपे जो आप सब हैं आप सोचें, and both the organizations and the university also, and I hope that something good will then come out of it. So this is how I will go today. If you see the women's contribution in governance, what do women contribute? That is the question that is in everybody's minds. अगर मैं अपने इससे देखूं, if I see from my own experience, what I think is that women have a sense of commitment
which I think the presentation is gone again, or you can see it. It's No, ma'am, blank, it's ma'am. gone. It's gone. You can try it again. Okay, there it comes. Right. Women, I think, bring a sense of commitment to the job. I don't say that men are not committed to their jobs, but women bring a greater sense of commitment. They bring an ability to nurture teams. मैंने जितना देखा है कि women officer हो तो office ज़्यादातर एक टीम की तरह से काम करता है. जेंटलमैन ऑफिसर्स के साथ भी है. आई वुड नॉट माने मैं जो भी वुमेन के बारे में कह रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुरुष ऑफिसर्स के खिलाफ कुछ कह रही हूँ, बिकॉज आई जेन्युइनली डोंट वांट टू. मैं पॉलिटिकली करेक्ट होना नहीं चाहती, लेकिन आई हैव वर्क सो लॉन्ग विद सो मेनी ऑफिसर्स, और खास करके इंडियन ब्यूरोक्रेसी में ये सच है दैट जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग दैट वुमेन आर समथिंग गुड डज नॉट मीन दैट द मेन आर डूइंग समथिंग बैड. और दूसरा मुझे एक जो लगा कि विमेन आर ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेशर. कोई महिला पे प्रेशर डालना, कोई भी पॉलिटिशियन हो या सीनियर ऑफिसर हो या कोई हो, वो 10 बार सोचता है. खास करके अगर वो महिला अपना काम बहुत ही स्ट्रांगली करती है, कमिटेड है अपने काम में, उसको खामियां निकालना मुश्किल है, तो महिला को प्रेशराइज करना, महिला को टेम्प्ट करना, महिला को किसी तरह के करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करना, ये थोड़ा मुश्किल लगता है, मुश्किल होता है. that has been my experience so far. So women bring a much cleaner sense of governance, a much more responsible sense of governance. ये आप इस प्रेजेंटेशन में जो देख रहे हो, ये यूएनडीपी का रिपोर्ट है, जेंडर इक्वालिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. और उस रिपोर्ट में UNDP कहता है that governments are more responsive, more accountable, and the quality of public services delivered improves markedly with women leaders. So this is something which the latest UNDP report says. It also says that women would have more policies relating to ending violence against women, relating to childcare services, and healthcare services will get more attention. So एक महिला का you would see that उनका जो एक familial approach है, it automatically gets into their work, and those are the things which are समाज के लिए बहुत आवश्यक चीजों में महिलाओं ऑफिसर्स का योगदान काफी अच्छा रहता है. And like I said earlier, from my own experience, governments tend to be less corrupt, and political parties are also likely to work together better if there are women officers. So women, why should we bring women? Why are we talking about women in governance? Not because by 50% men and 50% women, therefore women, but also that women bring something different, something more to governance. If you see who are the entrants in governance, तो आप देखेंगे खास करके I will focus on the civil services. आप जिसको IAS, IPS, IFS हम लोग कहते हैं, उस पे मैं फोकस करूंगी. इसमें अगर आप देख रहे हो तो ये अवार्ड्स अभी PM's अवार्ड्स इन एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अभी 2 ही दिन पहले दिए गए हैं. इसमें 2 महिलाओं का फोटो मैंने चुना है, इसलिए नहीं कि केवल महिलाओं को मिला है, बहुत सारे पुरुष अधिकारियों को भी मिला है. But this is a representative image of what the young women are doing. They are very young. You join up civil services, join करते हो, average age is between 25 and 28. So you are not even in your 30s. You have a lot of energy. There's a lot of commitment. क्योंकि
प्रिपरेशन इटसेल्फ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. आप सबको पता होगा 1 साल की एग्जाम रहती है. अगर आप प्रीलिम से होके फिर आप मेंस में जाओगे, मेंस से यू विल गो टू द इंटरव्यू, एंड इफ आप इंटरव्यू में पास नहीं हुए तो आपको फिर से प्रीलिम करना पड़ेगा. तो अनदर ईयर ऑफ द एग्जाम. तो इसलिए बहुत ज्यादा ग्रुएलिंग प्रिपरेशन है. मोस्ट ऑफ द people are extremely well educated. Why 100% are extremely well educated. हम लोग जब दिल्ली में थे तो हम लोग सिविल सर्विसेज के जो इंटरव्यू के लिए जाने वाले एस्पिरेंट्स के लिए हम लोग मॉक इंटरव्यूज लेते थे. और आई यूज्ड टू बी वेरी सरप्राइज कि कई बार फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जिन्होंने पढ़ाई करी है, ऐसे लोग जो बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर कंपनीज में जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी दे आर स्टिल वांटिंग टू गो टू सिविल सर्विसेज. तो इस तरह से बहुत ब्राइट लोग सिविल सर्विसेज में आते हैं. बहुत ब्राइट महिलाएं, लड़कियां आती हैं. थॉटफुल होना तो एग्जाम एंड इंटरव्यू का पैटर्न ही वही है. अगर आप सोच आपकी नहीं हो, आप अगर बहुत चीजों में बहुत एंगल से बहुत गहरे तरीके से ना सोचते हो, यू विल नॉट गेट इनटू द सिविल सर्विसेज. एंड ऑफ कोर्स इट इज एन एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एग्जाम. आपको पता है लाखों बच्चे वो देते हैं, उसमें से कई 100 बच्चे पास होते हैं. तो I will come to the statistics a little later. So this is the kind of people who are getting into the civil services. These are the kind of young women that are getting into the civil services. ये आप अगर देखें तो ये 4 ही फोटोज मैंने यहाँ पे दी हैं. ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो एंट्री करती हैं, लेकिन ये हाल ही में जो 1-2 साल पहले these young women have entered the civil services. पहले ये होता था कि बस सेंट स्टीफन से या दिल्ली के कई बहुत ही एलीट कॉलेजेस से बहुत सारे लोग सिविल सर्विस. इनफैक्ट व्हेन आई जॉइन सिविल सर्विसेज, तब हमारे जो सेक्रेटरीज होते थे 70, 75, 80 बैच के, तो वो तो बहुत सारे स्टीफन वाले ही होते थे. और ये एक बहुत ही एलिटिस्ट टाइप का जो एंट्री था, वो आज काफी हद तक बहुत सारा बदल चुका है. इवन फ्रॉम टियर 3 सिटीज बहुत सारी महिलाएं भी आ रही हैं अक्रॉस इकोनॉमिक बैकग्राउंड. फॉर एग्जांपल, ये जो लड़की है विथ अ शॉर्ट हेयर कट, शी इज द डॉटर ऑफ अ ग्रोसर, श्वेता करके उसका नाम है. और ये जो दूसरी ये खड़ी है, ये शी इज अ डॉटर ऑफ अ फार्मर, माने एक किसान की बेटी, एक ग्रोसर की बेटी. ये जो है एक छोटे बच्चे के साथ, शी इज फ्रॉम सोनीपत, और उसका तो 4 साल का छोटा सा बच्चा है, तो भी उसने मेहनत करके she got into civil services. Therefore, Pranjal Patil is visually challenged. She has entered the civil services. So across economic backgrounds, across communities, despite hardships, मुझे लगता है कि जिसका 4 साल का बच्चा हो उसको सिविल सर्विसेज देना बहुत ज्यादा मुश्किल है. लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके, और ऑब्वियसली इनके फैमिलीज ने भी इनको सपोर्ट किया है, क्योंकि जिस एग्जाम में 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, उसमें बिना फैमिली सपोर्ट के आप नहीं कर पाते. सो दिस इज द चेंजिंग फेस ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन गवर्नेंस इफ यू विल, एंड द चेंजिंग फेस ऑफ विमेन entering into governance, and it will have repercussions. I am reminded जब मैं एक्टिविस्ट होती थी, तो हमने एक ड्राउट के टाइम हमने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें कि बहुत ही छोटी जगह से, जो विलेजेस से जो लड़के लड़कियां आती थी टू स्टडी इन द कॉलेज, उनको खाना देना. और हमको कोई अनाज नहीं मिल रहा था उस वक्त. जब हम कलेक्टर के पास गए तो कलेक्टर ने एक ही फोन करके हमारे बोरे भर भर के हमारे यहाँ अनाज आ गया. सो दैट इज द पावर. व्हाई डिड द कलेक्टर डू इट? क्योंकि वो खुद एक ऐसे फैमिली से आने वाला आदमी था जिसने बहुत देखी हुई थी. Hello, is somebody saying something? Meera ji? No, ma'am. Please continue. Sorry for interruption, ma'am. No, it's all right. It's all right. इस बैकग्राउंड से जब महिलाएं बहुत प्रयत्न करके जब सिविल सर्विसेज में आएंगी, तो सिविल सर्विसेज का इम्पैक्ट
का डायरेक्शन भी बदलेगा, उसके इम्पैक्ट का सीरियसनेस भी बदलेगा, उसमें काम भी बहुत अलग तरह से होगा। इस पे मुझे बहुत सारा विश्वास है। Now this is a very interesting slide. Can you see the slides completely या धुंधला सा दिख रहा है? क्योंकि मुझे धुंधला सा दिख रहा है। Ma'am, we can see. You can see. Okay, all right. See, because this is a very interesting table that I'm showing you. It shows कि IAS में कितनी महिलाएं select हुई over the years. So almost 1970 से लेके 2020 तक। ये मैंने जहां से references दिए हैं, I will give you a list of the references at the end of the presentation, so you can go to see these articles. It's very very interesting. मैं उसका कुछ ही भाग अपने presentation में ले पाई हूँ। तो if you see this, till about the 1990 mid 90s, the percentage wavered between 5 and 10%. माने जितने IAS सिलेक्ट होते थे उसमें केवल 5 to 10% ही लड़कियां होती थी। Now if you go to say, let's say after 2014 onwards, so definitely it has almost gone up to 30%. But let us say between 2000 and 2010, it started reaching to at least 10 to 15%. तो इस तरह से women's representation in the IAS has improved. मेरे हिसाब से अगर आप और services देखेंगे तो it might be better than this. That is my prima facie, whatever I have experienced. I think that other services like Indian Revenue Service or Customs and Central Excise, Railways has more number of women. Perhaps because अगर आपको IAS नहीं मिलता, तो rather than going to Indian Police Service or Indian Foreign Service, women may prefer the other services where the chances of staying in their own country, अपने देश में रहने के chances ज़्यादा होते हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में भी बहुत सारी महिलाएं होती है। Yes, somebody saying in legal field, absolutely. तो the percentages are better in other areas, but this is a changing phase of women in governance in India. Now, this is also a very interesting table, and sometimes हम कहते हैं कि numbers speak more than anything. आप एक लंबा सा भाषण दे दो और एक table आपके सामने रखो, तो that table says much more. So if you see, this is for the latest UPSC जो अपना report निकालती है, उस report से मैंने लिया हुआ है. I think this is a 2020 exam. तो by the way, इस exam में 5.38 lakh people had sat for the exam. You can imagine माने कितना जबरदस्त भयानक भी मैं कहूंगी कंपटीशन है। तो 5.38 लाख में से अल्टीमेटली 11,400 लोग सिलेक्ट हुए for the main exam. These many people wrote the main exam. उसमें 13% women and 86 point something % were men. That was the proportion of men is to women on who wrote the exam. If you go to the interview stage, you will see that the percentage of women who cleared the main exam is better than, there's improvement there. And as far as men are concerned, there's a decline. 80% men and 19% women. And if you go to the final number of how many were selected, you will see that 23%. I mean, I'm really happy with this, मुझे ये table देख के बहुत construct करते हुए बहुत खुशी हो रही थी कि 23% women have ultimately been selected as against 76% men. So women seem to fare much better in the civil services exam. When I will present you ahead, you will see that they are also faring better in the middle management and also in the senior management. Now, ये middle management की जब मैंने अभी बात करी तो ये joint secretary level जो होता है, कहते हैं कि joint secretary सरकार चलाते हैं, माने बाकी तो लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, सीनियर ऑफिसर्स वगैरह तो बहुत सब है, बट अल्टीमेटली कौन चलाता है? हु इज द पर्सन हु रियली रन्स द government? That is a joint secretary. That is a cutting edge, that is a middle management, very hands on. For example, आप लोगों को पता था कि नहीं, I don't know, but during COVID, जब most of the private sector people could sit at home and could work at home, the joint secretaries were never exempted from going to office. Throughout COVID,
joint secretaries had to be there. घर में casualty हुई हो, घर में कोई कुछ भी हो, joint secretaries were doing, and what were they doing? माने I was so surprised. उनका जो normal काम को छोड़ के उनको दुनिया भर के काम लगाए थे. For example, वो ऑक्सीजन के जो ये आने थे फ्रॉम, वो ऑक्सीजन की ट्रेन चलानी थी, या बाहर से ऑक्सीजनेटर्स क्या बोलते हैं, those machines which वो लाने थे, इसी सब में. And the joint secretaries really had no life of their own, and this is the really cutting edge of government. जो they're the key drivers, as you would, of governance, and the hard work is completely I mean, yes, that is now at that level. How are women faring? So once again, a happy table for me at least. What are they doing? So let us see that. For example, the CEO of the National Anti-Doping Agency is a woman. मैंने अभी DOPT के website पे अभी जो postings हुए हैं उसी से लिया है. There is, so additional secretary of the Central Vigilance Commission is a woman. Member Finance of the Space Commission and Atomic Energy Commission is a woman. Secretary of the Appointments Committee of the Cabinet is a woman. Development Commissioner of the Special Economic Zone. So you see across portfolios, maybe it is anti-doping, or it is vigilance, or it is space, or it is the Appointments Committee of the Cabinet is one of the most important committees in government. Indo-Tibetan Border Police, it is called police, but is nothing less than the armed forces. तो ऐसे अलग, और export promotion zone. So all different kinds of portfolios are being held by women at the middle management level. Let us look at the numbers now. तो मैंने ये जो numbers लिए हैं ये empanelment वाले numbers हैं. तो in 2003 जो हमने अभी पहले का table देखा, उसमें 16% women were selected in the IAS. And how many have been empaneled? Out of 41 empaneled, 10 have been women. So almost 25% women have been empaneled. For 2004 batch, 18% were selected, almost 25% have been empaneled. For the 2005 batch, while 11% were selected in the IAS, 18% have been empaneled as joint secretary. So you will realize that कि महिलाएं बहुत cutting edge काम भी कर रही हैं, और even at entry level पे definitely, at middle management level also, they are doing much better than their male counterparts. Now, let us see what is happening at the senior level. I have given a few pictures. The picture of the lady holding a microphone, she's Secretary Health. And अब COVID के time में, she was the one who was literally taking everything on her head. Mane, of course, she has a department, but through the COVID, whatever the country had to go through, a woman was leading us at the senior level. These ladies are also all secretaries and doing extremely well. Now, out of 77 secretary level posts today, you can leave out 11 because 11 are scientists, and therefore they don't really come from the civil services. Of course, they are part of the governance, but women in science is another completely different kind of study. Therefore, I thought I would leave them out. 16% are women, if you see. Now, when they were recruited around 1990, I mean 1989-90 batch women are secretary level. So उस वक्त तो केवल 5% women were selected in the IAS. So you will realize that from 5% now, even at the secretary level, there's a big jump of women manning. I don't know, nowadays you're not supposed to use the word manning, but women holding positions at the secretary level. They work impossible hours, let me tell you. No secretary ever goes home before 8:30. Bureaucracy के बारे में कुछ भी छवि हो बाहर, लेकिन मैंने खुद देखा है कि 8 साढ़े 8 से पहले कोई भी सेक्रेटरी अपने घर नहीं जा सकता. ना शनिवार है, ना रविवार है, ना कोई टाइमिंग है. मुझे खुद को रात को 11 बजे फोन आता था, मैडम ये मंत्री जी कहीं और किसी देश में गए हैं, उनके लिए ये डिटेल्स चाहिए, बताइए और आधे घंटे में बताइए. So there is nothing like timelines at, I was not secretary of course, but nothing like timelines at the senior levels, and the women are fighting and delivering results. So this is where the women are in governance. What are the portfolios?
For example, I got this table from an article. I have put that article in the references. The article says that there is a bias against women in governance. Let us look at the numbers. According to me, there is not really much of a bias. If you see, it is sorted on the percentage of men across ministries. So in urban development, so out of 100 men officers today, IAS, उनका क्या distribution है across portfolios? That is what this table says. So 18%, 18.8% are in urban development, 14% are in general administration, 10% are in finance and revenue, industry, commerce, investment, trade, infrastructure may another 10.1%. But if you see the corresponding women's numbers, मुझे बहुत ऐसे नहीं लगता कि इसमें बायस है या किसी को साइडलाइन करने की कोशिश करिए ऐसे ये नंबर्स देख के मुझे नहीं लगता, हालांकि उस आर्टिकल में वो दोनों जो ऑथर्स हैं उनका ये कहना है, बट आई वुड like to differ. If you see education में there are more 10% women as against 6.8% men. There are certain other, for example, cultural affairs where more women, less men. So there are areas which have more women. Welfare में 8% women, 6.1% men. My sense would be, or I think I asked that question in the next slide. No, well, so this is more or less the what shall I say? The distribution of women IAS officers, but of course there are officers from other services also over here, and that may balance, in fact, the distribution of portfolios. But in my sense, there is not so much of a bias against women. Well, so this is, I used to belong to this organization, the Central Board of Direct Taxes. This is a picture of the board. So all these are board members. You can see obviously that there's a chairman, and out of 6 members, 4 are women. At one point of time, a few months back, principal chief commissioners, that's a very senior post. They are really the head of that particular region. Of Mumbai, Delhi, Chennai were women. So 80% of the tax collection was supervised by women. That is around 11 to 12 lakh crore rupees of tax collection supervised by women. As I said, 4 on 6 board members are women. The investigation wing, आपको जो पता हो, रेड डालने वाला जो एक organization होता है within income tax department. Out of 11, 3 are women. So again, more or less 30%. So 27%, yes. So 27% women are DGs as compared to more or less 5%. क्योंकि DG level भी बहुत senior है. अभी 87, 88, 89 batch के लोग अभी DGs हैं. तो वहाँ पे भी they seem to have fared better than their male counterparts. So if overall, if you see the what I have been trying to dig out is that women have had a fair chance, that women have not entered. Is it because of a bias of trying to sideline? There's a question we will come to a little later. However, this is also another fact that, and this is, I think, a bit glaring. This is something which needs a bit of reflection. हमको सोचना चाहिए कि women officers are more likely to seek voluntary retirement. I have also taken voluntary retirement, but I'm back as a student. It is not that I'm sitting at home. But yes, women officers tend to take voluntary retirement more than gentlemen officers. अब ऐसे हैं कि senior level positions are at towards the end of your career. तो आप अगर जल्दी voluntary retirement ले लें तो definitely you won't reach those senior levels. So the two feed into each other. Lesser number of women at senior levels, and also the case of voluntary retirement. I would also think that sometimes
Do women think of their careers as being less important than their family? That they would like to do something else? Maybe do women have more interests as compared to men? Do women have a more rounded life as compared to men? These are the questions that this slide on voluntary retirement. We need to reflect on these things. I would not immediately make any judgments on this, but I think yes, definitely this is something which we need to reflect on. This is something which I think is a tough one. In the PSUs, the Public Enterprise Selection Board, recently a woman has been appointed as its chairman. You would see at the bottom there's a table कि कितने फीमेल कैंडिडेट्स को रेकमेंड किया PESB ने. 2.4% only in 2016, 7.69% in 2017, 3.8% in 2018, 2.75% in 2019, and 6.89% in 2020. This is definitely cause for worry. There was also an ILO study a few years back which estimated that about 11 to 15% were women in E4 to E9. E9 is a highest level position in India. Now, why did they have to estimate? Because we did not have data. And I think that is what comes recurringly. That may be one of the things that Bharatiya Stree Shakti or the university or the Heritage Society in Patna may like to take up, is that data is not available. Disaggregated data at every level, how many women and how many men, is not available in our organizations. And there, if you don't, ये खेत कैसा है वही पता नहीं, आप इसको कैसे सुधारेंगे? आपको डेटा ही नहीं मालूम, आपको यही नहीं मालूम कि कितनी महिलाएं हैं, तो आप उसको कैसे सुधारेंगे? So ILO has therefore estimated that only 11 to 15% women are there in senior level positions. Recently, a parliamentary panel, all this data came to the fore, जो मैंने नीचे table दिया है, because the parliamentary panel recently wrapped the PESB कि चल क्या रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो? And the panel said कि do you actually have a glass ceiling, कि आप क्यों नहीं recommend कर रहे हैं आप महिलाओं को? That parliamentary panel was headed by a man. It was not a woman who was heading that parliamentary panel. So therefore, Sindhu ji, you wanted to say something? Ma'am, your lecture is so very interesting. We just want your presentation to go on and on. Ma'am, but we are left with maximum of 20 minutes. Last 5, 7, 10 minutes, we would like to have questions from the participants also. Oh yes, I'm sorry. Yeah, perfectly all right. So it's a very well-researched presentation. We would like to have you again on the panel. No worries, no worries. Okay, perfectly all right. So this is the story of the PSU. PSUs are very important in governance क्योंकि ultimately जो services delivery होती है, अगर आप देखेंगे यहाँ, all this is ultimately done by the PSUs, and therefore there the story is one of concern, definitely. I've done a small international comparison. This is the Internal Revenue Service of the US. I deliberately wrote the names of all the the board members. You will see that there's not a single woman there. Also, if you look at the French, because France is supposed to be the mother of all political thought and everything. So if you see very few women, and very interestingly, there is a current debate that ENS is École Normale Supérieure. That is one of the elitist schools, and there are only 5 such universities in France. They are for science, technology, law, etc. And in that, during COVID times, they had to take an exam without an interview because they could not have interviews. And in such an exam, the number of women who passed
jumped from the normal 40% to 80%. I mean, that there is a raging debate on Twitter as well. I will give the Twitter handle and the link here. Very interesting to see. In a country like France, जब आप इंटरव्यू नहीं लेते हो तो the number of जितनी लड़कियां पास होती है वो 40 से 80% हो गई, and it was like really an eye opener. So this is the comparison with US and France. Well, now these are the series of questions that I have for you. Is there a cement ceiling? Definitely not. Is there a glass ceiling? Yes. Many women think that in the bureaucracy there is a glass ceiling. There's an old boys network. माने दोस्त हैं तो एक दूसरे को recommend कर दिया, ये कर दिया. Is there a deliberate attempt to sideline women? I have my doubts, but sometimes women do feel that yes, there's a deliberate attempt. Personal integrity is really the key factor, and that is why all these जो जितने number मैंने आपको बताया कि women do much better. I think one of the main thing is that on the personal integrity front, on the corruption front, women invariably score much higher than men. And if women are very serious about their career, they also score much higher in delivery. There is no doubt in my mind, at least on that. However, Cabinet Secretary, Home Secretary, and Defense Secretary, the three key posts in Government of India, never held by a woman so far. Food for thought. PSU levels I just spoke to you about. The question is, how many girls are going to engineering colleges? I think that is what is reflected in, especially in the PSU governance. Is it changing now? Yes, it is. I hope it will change even better. How do we fare with the rest of the world? More or less equally. Where do we go from here? That is the main question for all of us. I would suggest that this UNDP report, जिसका link मैंने दिया हुआ है, वो देखें. Any one of you may even take it up as a project. It should be gone through very, very carefully, because I think India is not properly represented there. Many of the good things that are happening in governance in India have not been reflected there. We should ask the UNDP, or we should ask the Department of Women and Child Development, what have they been doing? Did they not give the data to the UNDP? Or did the UNDP not take the data into account? That is something somebody can do as a project. Do we need affirmative action? Do we need, reservation, 30% women also in services and all? That is something I have not thought about. That is something for all of you to think. And so these are the references. I will share the presentation later. Some of them are very interesting. You can look up all those things that I spoke about. And thank you for your patience. Thank you so much, ma'am. It's been just a wonderful presentation, because your lecture was not just a theory. It's been based upon factual data. You have talked about the various aspects of women in governance with these kinds of figures which were near reality. And thus you have discussed and thrown light on this very aspect, that women are not that kind of part in, they are not inferior in governance, and they are equivalent and maybe better. So a great thought-provoking lecture that you have delivered, ma'am, and we are highly indebted to you, kind gratitude to you for sparing your such valuable time to be amongst us, and more importantly, the way you have presented a very well-researched presentation. That is very important, because जो facts और reality के करीब है, उसको challenge करना सच में मुश्किल हो जाता है. So with these words, I would now request all my co-participants, अगर आपका कोई प्रश्न है, आज मैडम का इतना एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने इतना बढ़िया जो लेक्चर दिया है, उससे अगर हम कुछ और थोड़ा जानना चाहें, तो आपका जो प्रश्न है वो आमंत्रित है. धन्यवाद ममता जी. मैम, everybody is liking your lecture and they are thanking you.
They are sending the messages. Yeah, I can see them. Yes, thank you very Yeah. much. I think if you look at my the references, each reference is a project in itself. हर एक रेफरेंस से यहाँ पे जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कई तरह की चीजें हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, पार्लियामेंट्री काम, सो हर एक चीज पे एक रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है. प्लीज Wonderful. क्वेश्चंस आप अगर अपना कैमरा ऑन करें तो आई विल बी हैप्पियर व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन. Yes, please. We can put on camera and at the end we can take a picture also. हम सब अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं. धन्यवाद अनुश्री जी. अर्चना जी is there too. पूनम जी, ममता जी, प्रीति जी. Kamudini Tai ji is there. Anshu ji is there. Ji ma'am, your request has been accepted. Oh, thank you. It's much nicer to see faces and आप सो रहे हैं कि बोर हो रहे हैं, ये मुझे तभी पता चलेगा जब आपके कैमरास ऑन हो. ये इतना इंटरेस्टिंग था मैम कि हमें ये हमारे लिए तो आई ओपनर लेक्चर था आज का, कि जितनी भी महिलाएं उनका रोल क्या है गवर्नेंस में, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी यहाँ घर बैठे हमें आपका ये लेक्चर हमें ये दे रहा है. तो ये तो बहुत बहुत बड़ी रिसर्च है आपकी, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं. नहीं मुझे मजा आया, काफी मैंने खोज और इतने थोड़े समय में ये इसके लिए तो 2 घंटे चाहिए. इतने थोड़े समय में आपने इतनी सारी डिटेल हमें दे दी और हमें भी जानकर खुशी हुई कि टॉप लेवल पे हमारी बहनें, हमारी महिलाएं उस कैडर पे हैं और वो महिलाओं के बारे में अधिक सोचेंगी, क्योंकि हमारे भारत जैसे देश में मैक्सिमम 40% लेडीज तो वो विलेज के उस कोने पे है जिसको पता ही नहीं है कि उस ऊपर के लेवल में क्या हो रहा है. तो इसलिए हमें आज बहुत आनंद आया आपका लेक्चर सुन के. हम ये जो रेफरेंस आपने हमें दी है, मैं ज्योति जी या सिंधु जी आपको ये एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ये रेफरेंस हमें बहुत धुंधले नजर आ रहे थे, हम उसको स्क्रीनशॉट करके भी वो हमें क्लियर नहीं आ रहे, तो उसको थोड़ा वैसे हमारे ग्रुप में डालेंगे तो हम उससे अधिक जानकारी ले पाएंगे. धन्यवाद. धन्यवाद ममता जी. आई एम श्योर संगीता मैडम जी कि यहाँ पर जितने भी प्रतिभागी हैं सबकी यही इच्छा होगी कि हम आपका रिसर्च का जो ये जिस्ट है, हम अगर हमारे साथ शेयर हो जाए हमारे ग्रुप में. बिल्कुल 100%. आई एम शेयरिंग इट. Yeah, and the references also, that will help a lot. Yes, that is for you only. तभी तो मैंने वो डाले. जी बिल्कुल जी. Perfect. और किसी अनुश्री जी, you have raised the hand. आप अपना प्रश्न पूछिए अनुश्री जी, उसके बाद अंशु जी. जी नमस्ते. नमस्ते संगीता जी. संगीता जी, I have 2 quick questions. Am I audible? So Sangeeta ji, you said that there is change in approach of women civil servants, or when you have women in governance, there is change in approach, as in they take more familial approach. So I was interested in knowing whether this change in approach translates into change in priorities of governance also, or does that remain same as with their male counterpart? And the other question being, usually in analysis and assessment, we hear that regardless of which government is in the power, bureaucracy remains the same, which is why no matter what policy you have, it won't see any change on ground unless it is implemented with help of bureaucracy. So the suggestion is that there might be some level of adamancy on the part of bureaucracy. My question is, if this is the case, then do we see more flexibility when you have women officers or women bureaucrats taking up the responsibility? Or is it just same as that of male bureaucrats? That's it. Thank you. See, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसे लग, मैंने खुद काम क्या किया नहीं, मेरी जो मैं बैचमेट्स भी देख रही हूँ या आसपास के जो ऑफिसर्स भी देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत मन लगा के करती है जो भी करती है, क्योंकि उनके लिए ये एटलीस्ट एट दैट लेवल ये अनिवार्य नहीं कि वो पैसा कमाने के लिए, हाँ उससे पैसे मिलते हैं इज वन थिंग, बट इट इज ऑल्सो फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. They are not the bread earners.
तो इसलिए जब आप अपने लिए जब कर रहे हो तो डेफिनेटली दे आर मच मोर क्या कहते हैं कमिटेड एंड मच मोर इन्वॉल्व इन देयर जॉब डेफिनेटली। जो जैसे ये वो यूएनडीपी स्टडी में ही है कि women will women have taken, not only in India but in several countries, when women are at the helm, many things like पोषण, बालकों का पोषण, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, पानी की व्यवस्था, drinking water, all these things are much better taken care of, they are prioritized. So ये UNDP के study में भी है, not only in India but the world over. As far as the adamancy or of women officers, well, women can be very adamant as well. we know that कि एक बार ठान ली तो ठान ली, ऐसे भी होता है. But women will generally, मेरा मानना ये है कि बहुत एक political viewpoint लेके हम नहीं काम करेंगे. ये one upmanship ही है ना, उसमें man ही आ रहा है, तो one upmanship women officers में कम है. That is what I think. Yes. धन्यवाद. अंशु जी, आप अपना प्रश्न कीजिए. Unmute yourself, please. Unmute yourself. Yes, ma'am. Ma'am, I don't have a question. I want to express that along with your session, your presence and your persona is so impactful that when people of your cadre come out, also armed forces, and talk about this, a lot many of our doubts, which sometimes are baseless also, of women equality and position, and sometimes victimizing ourselves for no reason, it just vanishes. So it was such an impactful and great learning. So along with the content, the way, just thank you so much to the team and to you, ma'am. Thank you. No, not at all. My pleasure. It gave me an opportunity to research so many things. Thank you. Definitely, ma'am. It is a privilege, and we had an opportunity to go through such a vivid and graphic presentation on your part, and it has added to our knowledge, definitely. Thank you so much. I guess there are no more questions. Anushri ji, you want to ask something? And okay, done. Thank you. So with these words, we would like, on behalf of all my co-participants and even all the three organizations, Browse from Mau, MP, Heritage Society, Patna, and Bharatiya Stree Shakti, we express a gratefulness to Madam Sangeeta Madhukar Godbole ji for having accepted our invitation and having and being so kind to be with us at such a short notice, ma'am. Your presentation definitely, as everybody has said, has been eye-opening, and with the kind of lead that you have given in this area, that is women in governance, definitely our strength and our resolve that also gets further resolved, that we can, not we should, Yes. but we can. So definitely your insightfulness has helped us to get into this very thought, into this very mode of action. Thank you so much. Thank you, Shailatai, for being with us. Thank you, everyone. Thank you, Sangeeta ji. Thank you, Jyoti, very much. Thank you all. Thank you, Mamta ji. Thank you, Sindhu ji. Namaste. Thank you, नमस्कार, Anushri. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम. धन्यवाद. आज के हमारे दोनों सेशन डेफिनेटली ग्रेट, इंसाइटफुल. काश हमारे पास और समय होता. अगली बार हम ध्यान रखेंगे. बिल्कुल. Thank you very much. Thank you for inviting.